Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss chemistry class 11 Federal Board chapter 10 solution and colloids exercise questions. And in this part we will discuss question number 18 to question number 35. Move to question number 18. Define heat of solution and apply this concept to the hydration of ammonium nitrate crystal. हमने heat of solution को define करना है और फिर उस concept को apply करना है towards the hydration of ammonium nitrate crystals. सबसे पहले हम देखते हैं जी heat of solution. The heat of solution refers to the amount of heat absorbed or released when a solute dissolves in a solvent to form a solution. जो heat एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं उस हीट को हम कहते हैं जी हीट ऑफ सॉल्यूशन. इट रिप्रेजेंट द एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद द डिसोल्यूशन प्रोसेस. जो डिसोल्यूशन प्रोसेस के दरमियान एनर्जी चेंज आ रहा होता है उसको कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन. हाइड्रेशन ऑफ एमोनियम नाइट्रेट. Ammonium nitrate is highly soluble in water and has a positive heat of solution. The dissolution of ammonium nitrate in water is an example of an endothermic reaction because energy is required to break the ionic bonds between the ammonium and nitrate ions in the crystal lattice. जो dissolution process होता है ammonium nitrate का वो क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है क्योंकि वहाँ पे जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है कि हम आयनिक बॉन्ड्स जो कि अमोनियम और नाइट्रेट आयंस के दरमियान बने हैं उनको ब्रेक डाउन कर सकें. द वाटर मॉलिक्यूल सराउंड एंड सेपरेट दिस आयन resulting in the formation of hydrated ammonium and nitrate ions in the solution. और जब ब्रेक होता है वाटर मॉलिक्यूल्स की मदद से हमारा जो है अमोनियम नाइट्रेट का आयन तो हमारे पास हाइड्रेटेड अमोनियम और हाइड्रेटेड नाइट्रेट आयंस प्रोड्यूस होते हैं. In case of hydration of ammonium nitrate NH4 NO3 crystals, heat of solution is involved. जो हमारे पास heat of solution है वो involved होती है. When solid ammonium nitrate crystals are added to water, they dissolve and form an aqueous solution. जब हम वाटर के अंदर जो ammonium nitrate के crystals होते हैं solid form में जब उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास aqueous solution form होता है. During this process, heat is absorbed from the surrounding, causing a decrease in temperature. और जब एमोनियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन हम फॉर्म कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस के दरमियान क्या है जो सराउंडिंग्स में हीट एब्सॉर्ब हो जाती है जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग का डिक्रीज हो जाता है और इस वजह से ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है. Now question number 19. Interpret the phenomena of freezing in a mixture of ice and salt. When salts are added to water, they lower vapor pressure of water. जब हम salts को water के अंदर ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है due to the addition of salts vapor pressure water का कम हो जाता है. As a result, these salts dissociate into ions in their aqueous solution और जो salts होते हैं वो अपने respective ion में dissociate हो जाते हैं. Therefore, they have greater amount or number of solute particles as compared to a solution of non-volatile non-electrolyte solute of same concentration. और जो dissociate ions का solution होता है उसमें क्या है greater amount of number of solute particles present होते हैं as compare के जब हमारे पास non-volatile या non-electrolyte solute present हो of same concentration. Example, NaCl and KNO3 are electrolytes. They ionize in the following ways. NaCl will ionize in Na plus and Cl minus. KNO3 will ionize in K plus and NO3 minus. Thus, NaCl and KNO3 solution has elevation of boiling point and depression of freezing point to a greater extent than that of non-volatile non-electrolyte solute. Non-volatile or non-electrolyte solute
की निस्बत जो हमारे पास NaCl और KNO3 का सॉल्यूशन है उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन है और फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन है। Therefore, they are commonly used as a freezing mixture और यही वजह है कि हम NaCl और KNO3 को as a freezing mixture यूज करते हैं। Now question number 20. Interpret how solute particles may alter the colligative properties. Solute particles कैसे colligative properties को alter करते हैं। Solute particles can modify colligative properties in a solution. जो solute के particles होते हैं वो colligative properties को modify कर सकते हैं। Colligative properties depends on the number of solute particles. Colligative properties क्या होती हैं? ऐसी properties जो कि number of solute particles के ऊपर depend करे rather than their nature or identity. The presence of solute particles increases osmotic pressure. जैसे जैसे हमारे पास solute particles की concentration इंक्रीज या डिक्रीज होती जाएगी, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर भी इंक्रीज और रिड्यूस होता जाएगा रिस्पेक्टिवली। सॉल्यूट पार्टिकल डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम लीडिंग टू दीज चेंजेस। और जैसे जैसे हमारे पास सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करेगी तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो भी डिस्टर्ब्ड होगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज होंगी। Now question number 21 है जी, interpret the effect of temperature on solubility. The effect of temperature on solubility refers to how changes in temperature impact the amount of solute that can dissolve in a given solvent. जो हमारे पास temperature और solubility का effect है वो क्या करता है कि temperature कैसे हमारे पास impact create करेगा on the solubility of solute in a given solvent. The relationship between temperature and solubility depends on specific solute and solvent involved. जो हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का वो डिपेंड करता है कि हमारे पास सॉल्यूट का नेचर और किस टाइप का हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है। Generally, the effect of temperature on solubility can be summarized as follows. For many solid solute in liquid solvent. जब हमारे पास जब सॉलिड सोल्यूट हो और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड हो तो तब क्या होगा? Solubility generally increases with increasing temperature. तो इस केस में हमारे पास जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे solubility भी इंक्रीज करेगी। इसका क्या मतलब है कि ज्यादा सोल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व होंगे जैसे जैसे हमारे जो है वो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन राइज करता जाएगा। This positive relationship is observed in most cases but may not hold true for all solute. ये ज्यादातर जो रिलेशनशिप है कि सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर आपस में डायरेक्ट रिलेशन है फॉर द केस ऑफ सॉल्यूट सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, ये अक्सर के लिए है लेकिन सब के लिए ये रिलेशनशिप होल्ड नहीं करता। Some solute may exhibit decreased solubility or no significant change with increasing temperature. कुछ सोल्यूट क्या करते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है या उनकी सोल्युबिलिटी के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अब सॉल्यूट गैसेस हैं और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है तो तब क्या होगा? सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो less gas solute molecules can dissolve in the solvent as temperature rises. This negative relationship is because gases are more soluble at lower temperature due to reduced molecular energy and slower gas particle movement. जो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है वो किस वजह से कि जो गैसेस हैं वो लोअर टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं क्योंकि जो उनकी मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है वो कम होती है और जो पार्टिकल मूवमेंट होती है वो भी कम होती है, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं वो एट लोअर टेम्परेचर ज़्यादा अच्छी सोल्यूबल होती हैं। The variation of solubility with temperature can be predicted from the enthalpy of solution. जो हमारे पास solubility और temperature की variation आ रही है वो हम enthalpy of solution की मदद से predict कर सकते हैं। If enthalpy of solution is negative, the solubility decreases, the temperature increases. अगर हमारे पास enthalpy of solution negative आ रही है तो temperature की increase करने से solubility decrease करेगी। लेकिन अगर हमारे पास इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 22 है जी, कंपेयर मोलल एंड मोलल सॉल्यूशन। मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है जी? इज अ कंसंट्रेशन यूनिट दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो होता है मोलैलिटी। इन अ मोलल सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज स्पेसिफाइड इन मोल्स। जो हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होती है हम उसको मोल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, while the amount of solvent is specified in kilograms. Molality is temperature independent, meaning it does not change with temperature. जो molality होती है वो temperature के ऊपर डिपेंड नहीं करती बल्कि वो temperature independent होती है। Now molar solution. मोलारिटी का जो सिंबल होता है वो कैपिटल M होता है और ये क्या है जी? इज अ कंसंट्रेशन यूनिट दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूट। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो होता है मोलारिटी। In molar solution, the amount of solute is specified in moles, while the volume of solution is specified in liter. Molarity is temperature dependent, meaning it can change with temperature due to volume changes caused by thermal expansion. ये जो है molarity, ये thermal dependent property है। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम temperature को increase या decrease करेंगे तो molarity of solution भी change होगी। और उसकी क्या वजह है कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो चेंज होगा बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है जी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बट मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन इट। मोलैलिटी टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट है लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, हमने उसको एक्सप्लेन करना है। Molality is independent of temperature because it is based on the mass of solvent. Molality क्या है? हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है, तो इसमें क्या है, ये टेम्परेचर के ऊपर इसलिए डिपेंड नहीं करती क्योंकि यहाँ पे जो है मास ऑफ सॉल्वेंट इन्वॉल्व होता है। जबकि मोलारिटी क्या है जी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी में चूंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन्वॉल्व होता है जो कि टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से वॉल्यूम अफेक्ट होगा, इसकी वजह से हमारे पास जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। नाउ the next one is 1 molar solution of glucose in water is dilute as compared to 1 molar solution of glucose, but the number of particles of solute is the same. 1 molar solution ग्लूकोज का वाटर में क्या है? डाइल्यूट है एज कंपेयर के 1 molar solution of ग्लूकोज, लेकिन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के वो दोनों केसेस में सेम है। The molar concentration unit refers to the amount of solute relative to the mass of solvent. मोलल में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है रिलेटिव टू 1 kg ऑफ द मास ऑफ सॉल्वेंट, जबकि मोलर में हम क्या करते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को रिलेट करते हैं विद द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Even though the number of solute particles is the same in both cases, the molar solution is more dilute because the mass of the solvent is larger compared to the volume of solution in the molar solution. जो हमारे पास mass of solvent होता है वो ज़्यादा होता है as compared to the volume of solution in molar solution। इसकी वजह से जो हमारे पास है वो dilute solution होता है 1 molar as compared to the 1 molar solution. Now the next one is the total volume of solution by mixing 50 of ethanol and 50 of water may not be equal to 100. Why? जो total volume होता है by mixing of 50 centimeter cube of ethanol and 50 centimeter cube of water equal to 100 नहीं होता, उसकी reason क्या है वो बतानी है। When different liquids are mixed, the resulting volume may not be equal to the sum of initial volume due to the phenomena called वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब हम दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हैं, जो जो उनकी मिक्सिंग से सॉल्यूशन बनता है उसका वॉल्यूम जो है वो दोनों की सम के बराबर नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है? वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। This can occur if the liquid have different molecular interaction and resulting mixture experiences a change in the overall
वॉल्यूम। और ये जो फिनोमेना है वॉल्यूम कंट्रैक्शन और वॉल्यूम एक्सपेंशन का, ये किस वजह से होता है? ये इस वजह से होता है कि जो लिक्विड की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है उनका जो नेचर है वो डिफरेंट होता है, और जो रिजल्टिंग मिक्सचर उनसे बनता है वो किस वजह से बनता है? ओवरऑल वॉल्यूम चेंज हो जाता है। इन द केस ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, अगर हम इथेनॉल और वाटर का केस लेते हैं तो दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ईच अदर। ये इथेनॉल और वाटर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, लीडिंग टू द वॉल्यूम कंट्रैक्शन, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है? डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू द सम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम्स। Next है जी NaCl and NaNO3 are used to lower the melting point of ice. NaCl और NaNO3 को यूज किया जाता है ताकि melting point of ice को lower किया जा सके। उसकी रीजन क्या है? NaCl table salt और NaNO3 sodium nitrate are both example of solute that when added to water disrupt the formation of ice crystal and lower the freezing point of the solution. और जब फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन का लोअर हो तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। The presence of these solutes interferes with the orderly arrangement of water molecules, preventing the formation of solid crystal lattice and allowing the solution to remain in the liquid state at lower temperature. जो NaCl और NaNO3 है, इन सोल्यूट की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है? जो हमारे पास ऑर्डरली अरेंजमेंट है वाटर की वो इंटरफेयर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रिवेंशन आती है कि सॉलिड क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो सके, और वो सॉल्यूशन को अलाउ करते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में रहें एट लोअर टेम्परेचर, क्योंकि जो हमारे पास सॉलिड क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaCl और NaNO3 इन वाटर। Now the next one is, in summer the antifreeze solution protect the radiator from boiling over. समर में जो एंटीफ्रीज सॉल्यूशन होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं रेडिएटर को कि वो बॉइलिंग ओवर से बच सके। Antifreeze solutions such as those containing ethylene glycol, antifreeze solution जिसमें ethylene glycol भी है, एंटीफ्रीज सॉल्यूशन जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल भी है, वो व्हीकल रेडिएटर में यूज किए जाते हैं कि वो बॉइलिंग पॉइंट कूलेंट का इंक्रीज कर सके। In summer, when temperature rises, the antifreeze solution raises the boiling point of the coolant above the ambient temperature, preventing the coolant from boiling and potentially causing the engine to overheat. जो antifreeze solution होते हैं वो क्या करते हैं? जो हमारे coolant का temperature होता है boiling point उसको increase कर देते हैं above the ambient temperature। इसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा कूलेंट है वो बॉइलिंग से प्रिवेंट हो जाता है, और जब बॉइलिंग नहीं होगी तो हमारे इंजन में ओवर हीटिंग भी प्रोड्यूस नहीं होगी, हमारा जो है इंजन वो ओवर हीट से प्रिवेंट रहेगा। The next one is 1 mole and 2 mole solution of urea boil at different temperature. 1 mole और 2 mole solution of urea जो है वो different temperatures के ऊपर boil करते हैं। वजह क्या है? The boiling point of solution depends on its concentration. जो boiling point of solution का वो depend करता है on the solute concentration. जैसे जैसे solution में solute की concentration increase होती जाएगी तो हमारे पास boiling point increase होता जाएगा। अब 2 मोलल सॉल्यूशन में जो है हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स वो क्या है? इंक्रीज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू 1 मोलल सॉल्यूशन, जिसकी वजह से 2 मोलल सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू 1 मोलल सॉल्यूशन। Now question number 23 है जी, explain the following. Relative lowering of vapor pressure is independent of the temperature. The relative lowering of vapor pressure is colligative property. जो vapor pressure है वो colligative property है। उसका क्या मतलब है कि वो depend करेगी कि हमारे पास number of solute particles solution में कितने present हैं regardless of the temperature. It is the ratio of lowering of vapor pressure of the solution to the vapor pressure of the pure solvent at same temperature.
ये रेशियो होती है हमारे पास वेपर प्रेशर की लोअरिंग की ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन to the vapor pressure of pure solvent in the absence of solute at the same temperature. The next one is the sum of mole fraction of all component is always equal to 1. जितने भी components हैं उनके mole fraction का sum always equivalent to 1 है, हमने बताना है इसकी वजह से. In a solution, the mole fraction of each component represents the ratio of the number of moles of that component to the total number of moles in the solution. जो हमारे पास mole fraction होता है वो हमारे पास represent करता है उस component के number of moles की ratio with respect to the total number of moles in the solution. और जब हम उन सब मोल फ्रैक्शंस को जो कि उस सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन हैं उनको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास जो सम है वो इक्वल टू 1 आता है. Now question number 24 है जी 1.89 gram of an organic compound A was dissolved per 85 centimeter cube of water. Density हमें दी हुई है जी 0.998 gram per centimeter cube. The boiling point and the 1 atmospheric pressure of this solution is increased to 100.106 degrees Celsius. What is the molecular weight of A? Molecular weight हमने compound A का find out करना है. गिवन है जी हमारे पास mass of organic compound 1.89 gram, volume of water 85 centimeter cube, density of water 0.998 gram per centimeter cube, pressure 1 atm, increase in temperature हमें दी हुई है जी 100.106 डिग्री सेल्सियस. फाइंड हमने करना है जी molecular weight of A. नाउ अब जो mass का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो हमारे पास डेंसिटी भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है तो हमारे पास mass of water आ जाएगा जी 84.83 ग्राम. इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है डेल्टा टी बी 100.106 डिग्री सेल्सियस. अब उसमें से हम माइनस करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तो हमारे पास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.106 डिग्री सेल्सियस. Now solving for the molecular weight of compound A. तो जब हम molecular weight का फॉर्मूला जो है वो क्या है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास वेट है mass है कंपाउंड A का मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आया है मल्टीप्लाई बाय W1 यानी कि मॉलिक्यूलर जो हमारे पास वेट आया है सॉल्वेंट का. नाउ एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर होता है जी 0.52 मीटर पर डिग्री सेल्सियस. M2 के अंदर जब हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की और जो हमारे पास 1.89 ग्राम प्रेजेंट था कंपाउंड ए का मैस और मल्टीप्लाई विद 1000 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास डेल्टा टी बी आया है 0.106 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास W1 यानी कि मास ऑफ वाटर है 84.83. जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आएगा जी कंपाउंड ए का 109.3 ग्राम पर मोल. Now question number 25 है जी what freezing point do you expect for water in which 17.9 gram sucrose is dissolved per 47.6 gram of water. हमारा जो freezing point है expectation के जरिए क्या आ रहा है for water जिसमें 17.9 ग्राम ऑफ sucrose dissolved हुई है पर 47.6 ग्राम ऑफ water. वेट ऑफ सक्टोज हमें दिए हुए 17.9 ग्राम, वेट ऑफ वाटर हमें दिए 47.6 ग्राम, डेंसिटी ऑफ वाटर 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. नाउ मोलर मास ऑफ सक्रोज यानी कि C12H22O11 this will be 342 gram per mole. Cryoscopic constant for water 0.186 meter per degree Celsius. Freezing point 9 degree Celsius. Freezing point of water 0 degree Celsius.
फाइंड अब हमने करना है जी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ M2 के फॉर्मूले में KF W2 1000 डेल्टा TF और W1। KF क्या है जी? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। W2 जो हमारे पास वेट था 1000, डेल्टा TF जो हमारे पास चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर है और W1 भी हमारे पास वेट है। अरेंजिंग द अबव फॉर डेल्टा TF हमने फाइंड करना है, तो डेल्टा TF के लिए इक्वेशन आ जाएगी और इसमें जब हम KF W2 और M2 और W1 की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा TF आ जाएगा जो 0.2045 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TF आ जाएगा जी 0.2045 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब जो डेल्टा TF होता है वो क्या होता है, जो हमारा जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें से हम माइनस करते हैं ये जो हमारे पास T2 होता है। तो T2 के लिए जो है फॉर्मूला बन जाएगा T1 माइनस डेल्टा TF। तो T2 डेल्टा TF हमने निकाल लिया 0.2045, तो 0 माइनस 0.2045 करेंगे तो हमारे पास T2 आ जाएगा जी माइनस 0.2045 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है जी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.756 torr at 25 degrees Celsius. How much glucose would be added to 100 gram of water to bring the vapor pressure down to 23 torr? हम कितना ग्लूकोज 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर ऐड करेंगे कि जो हमारा वेपर प्रेशर है वो 23 torr पे आ जाए। गिवन है जी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर P0 23.756 torr, molecular mass of water M1 18 gram per mole, weight of water 100 gram, vapor pressure of pure water 23 torr और lowering of vapor pressure delta P 23.76 minus 23 तो हमारे पास 0.756 torr आ जाएगा। फाइंड हमने करना है जी वेट ऑफ ग्लूकोज कि हमने वेट ऑफ ग्लूकोज या मास ऑफ ग्लूकोज कितना ऐड करना है। नाउ जो हमारे पास इक्वेशन होती है चेंज इन प्रेशर ओवर ओरिजिनल प्रेशर यानी कि डेल्टा P ओवर P0, वो होती है जी W2 मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय M2। नाउ जब हमने W2 के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है और हमने इसमें डेल्टा P P0 W1 M2 और M1 की वैल्यूज ऐड करनी है तो हमारे पास W2 will be 31.8 gram. Now question number 27 है जी you are provided 98% weight by weight sulfuric acid having density 1.84 gram per centimeter cube. How much volume of this compound is required to obtain 1 decimeter cube of 30% weight by weight sulfuric acid which has a density of 1.25 gram per centimeter cube? This solution is used in lead storage batteries as electrolyte. अब सबसे पहले हम देखते हैं जी 98% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी हमें डेंसिटी दी हुई है जी 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98%, डेंसिटी हमें दी हुई है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा जी 1.84 ग्राम। नाउ जब हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब के लिए करना है तो हम कर देंगे 1.84 मल्टीप्लाई विद 1000, दिस विल बी 1840 ग्राम। Now 100 gram of solution contains sulfuric acid 98 gram और 1840 gram of solution contains sulfuric acid। उसको हम कैसे करेंगे जी 98 divided by 100 multiply by 1840, this will be 1803.2 gram यानी कि 1800
3.2 gram. Hence, 1800 3.2 gram of sulfuric acid is present in 1000 centimeter cube. So this will be is equivalent to 1 decimeter cube of solution. Molarity अब कैसे निकालते हैं हम? Mass of solute divided by molar mass of solute multiplied by 1 over volume. Now जब हमारे पास mass of solute आया है 1803.2 divided by 98 जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास है मल्टीप्लाई बाय 1 divided by 1 decimeter cube of solution जो हमारे पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन का. तो मोलैरिटी हमारे पास आ जाएगी 18.4 मोलर. नाउ नेक्स्ट हम करेंगे जी 30% सल्फ्यूरिक एसिड के लिए. तो सल्फ्यूरिक एसिड परसेंटेज 30% है. इसका क्या मतलब है? हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके जो है वो हर 100 ग्राम ऑफ वाटर के लिए 30 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड है. Now density of sulfuric acid 1.25 gram per centimeter cube or mass of 1 centimeter cube of solution 1.25 gram. Mass of 1000 centimeter cube of solution हो जाएगा जी 1250 gram. Now 100 gram of solution contain 30 gram of sulfuric acid. To 1250 gram of solution contains sulfuric acid. This will be 375 gram. Hence 375 gram of sulfuric acid is present in 1000 centimeter cube. तो ये हमारे पास 1 decimeter cube of solution बन जाएगा. Now molarity का जो फॉर्मूला है वो क्या है? mass of solute divided by molar mass of solute multiplied by 1 over volume. जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी 3.83 मोलर. नाउ जब हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 3.83 मोलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करना है फ्रॉम 18.4 मोलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें M1V1 is equivalent to M2V2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे. तो V1 हमने कैलकुलेट करना है तो दिस विल बी इक्वल टू 208.2 सेंटीमीटर क्यूब. Now question number 28 है जी. Caffeine is about 10 times more soluble in hot water than in cold water. Is enthalpy of caffeine in water is positive or negative? जो caffeine है वो 10 times ज़्यादा soluble है in hot water than cold water. अब हमने बताना है जो enthalpy है caffeine की water में positive है या negative है. It shows that the solubility of caffeine increases with increasing temperature. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो इससे क्या पता लग रहा है हमारे पास solubility of caffeine भी increase कर रही है. तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें solubility of solute टेम्परेचर को increase करने से increase हो तो जो उसकी enthalpy होगी वो positive होगी और उस प्रोसेस को हम कहेंगे endothermic process. Since caffeine is more soluble in hot water, which implies that more heat is required to dissolve it. Hot water में हमें ज़्यादा heat required होगी कि हम caffeine को dissolve कर सके. It will be conclude that enthalpy change of the dissolution process is positive. In other words, the enthalpy of caffeine in water is positive. This means that the dissolution of caffeine in water is energetically favored by an input of heat. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो solubility है या dissolution है caffeine का in water वो भी इंक्रीज करता जाएगा और सिस्टम क्या करेगा? सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उस वजह से जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक. Now question number 29 है जी. PCl5 can react with itself in a reversible reaction to form a salt that contains the PCl4 plus and PCl6 minus ions. जो हमारे पास रिएक्शन है PCl5 के रिएक्शन का वो क्या है जी? 2 PCl5 will get converted into PCl4 plus
and PCl6 minus. The extent to which this reaction occur depends on the solvent in which it is run. जो इसका एक्सटेंट है रिएक्शन का वो डिपेंड करता है कि जो सॉल्वेंट है जिसमें वो अकर हो रहा है वो कौन सा है. Predict whether a non-polar solvent such as carbon tetrachloride favors the product or reactant of this reaction. Predict what would happen to this reaction if we use polar solvent. अब हमने बताना है कि जब हम नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट को यूज करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे या रिएक्टेंट प्रोड्यूस होंगे फॉर ईच केस. Non-polar solvents such as carbon tetrachloride would favor the reactant PCl5 over the products. जब हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इस रिएक्शन को आकर करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये जो रिएक्शन है ये टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड जाएगा और प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं बनेंगे. जबकि पोलर सॉल्वेंट्स में जब हम इसको अकर करवाएंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अकर होगी बाय स्टेबलाइजिंग द आयंस थ्रू डाइपोल आयन इंटरेक्शन ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Now question number 30 है जी, an aqueous solution of a compound boiled at 102.4 degrees Celsius, at what temperature will this solution freeze? हमारे पास क्या है जी, कंपाउंड का बॉइलिंग टेम्परेचर दिया है 102.4 डिग्री सेल्सियस. हमसे पूछेंगे कि किस टेम्परेचर के ऊपर जाके ये सॉल्यूशन फ्रीज होगा. अब जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है वो होता है मोलर mass of solute divided by mass of solvent multiplied by Kb divided by delta Tb multiplied by 1000. और जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है जी मोलर mass of solute, mass of solvent multiplied by Kf divided by delta Tf multiplied by 1000. अब जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जी, मोलर मैस और मोलर मैस हट जाएगा और ये वाली जो इक्वेशन है ये इसके इक्वल आ जाएगी. नाउ mass of solute कट जाएंगे, mass of solvent कट जाएगा, 1000 से कट जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी जी Kb over delta Tb is equal to Kf over delta Tf. नाउ डेल्टा Tf के लिए जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास Kf into delta Tb over Kb बन जाएगा. नाउ Kf हम पुट करेंगे 1.86 मल्टीप्लाई विद डेल्टा Tb जो हमारे पास गिवन था 102.4 जो बॉइलिंग पॉइंट था उस कंपाउंड का. तो डेल्टा Tb हम कैसे लाएंगे जी, 102.4 में से 100 को माइनस करने तो हमारे पास डेल्टा Tb आ जाएगा डिवाइडेड बाई Kb 0.52. तो हमारे पास डेल्टा Tf आ जाएगा जी 8.5 डिग्री सेल्सियस. नाउ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0 minus 8.5 we will get minus 8.5 degrees Celsius. Now question number 31 है, water and carbon tetrachloride are not miscible when mixed they form two layers. If an aqueous solution of iodine is shaken with carbon tetrachloride, the iodine is extracted into carbon tetrachloride layer. Interpret this behavior on the basis of your knowledge of intermolecular forces. Water और carbon tetrachloride आपस में immiscible है और आयोडीन को जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डालते हैं तो आयोडीन जो वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है इनटू कार्बन टेट्राक्लोराइड लेयर. हमने उसकी रीजन बतानी है. अब वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं जी, हाईली पोलर होते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट आ जाता है. द ऑक्सीजन एटम इन वाटर इज पार्शियली नेगेटिव. जो वाटर में ऑक्सीजन एटम्स होते हैं वो पार्शियली नेगेटिव होते हैं और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव होते हैं. अब ये जो ड्यू टू दिस पार्शियल चार्जेस ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस करेंगे. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है.
ऑन द अदर हैंड कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है जी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू 4 क्लोरीन एटम एंड हैज अ सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल शेप। इसमें क्या होता है कि एक कार्बन एटम जो है वो 4 क्लोरीन एटम से घिरा हुआ होता है, बॉन्डेड होता है, और जो इसकी शेप है वो क्या है, टेट्राहेड्रल शेप है। और इससे क्या होगा, जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, और जब वो कैंसिल हो जाएंगे, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो डाइपोल मोमेंट है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। और जो फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में वो क्या है, वीकर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। जब वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम आपस में मिक्स करते हैं, अब वाटर में क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्रेजेंट है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो कि वीकर फोर्स है वो प्रेजेंट है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फोर्स है वो ओवरकम कर जाती है वीकर डिस्पर्जन फोर्सेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्राइमरीली इंटरेक्ट विद अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और उससे क्या होता है, हमारे पास सेपरेट लेयर ऑफ वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड लेयर प्रोड्यूस हो जाते हैं। नाउ अब आयोडीन क्या है जी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जैसा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, और आयोडीन वाटर में भी soluble नहीं होता है ड्यू टू अनलाइक नेचर एंड forces. It is not soluble in water due to the strong hydrogen bonding present between water molecules. However, iodine can interact with carbon tetrachloride through dispersion forces. अब आयोडीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं तो ये दोनों आपस में इंटरेक्शन कर लेते हैं through the dispersion forces. When an aqueous solution of iodine is shaken with carbon tetrachloride, the iodine molecule migrate to the carbon tetrachloride layer. अब जब हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड के जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आयोडीन का जो प्लेस किया, शेक किया, अब आयोडीन का मॉलिक्यूल क्या करेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की तरफ माइग्रेट कर जाएगा और वो इंट्रैक्शन बनाएगा विद कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल्स थ्रू डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसकी वजह से आयोडीन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में soluble होता है। This behavior is consistent with the principle that like dissolves like, where substances with similar intermolecular forces tend to dissolve in each other. Like dissolve like वाला फिनोमेना क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो सेम नेचर के, वो दोनों आपस में एक दूसरे में soluble होंगे। Now question number 32 है जी, a cucumber placed in concentrated brine shriveled into a pickle, give argument to support this observation. जब हम कुकम्बर को यानी कि खीरे को कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करते हैं तो वो श्रिवल हो जाता है इनटू पिकल। हमने उस पर आर्ग्यूमेंट देना है ताकि हम इस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट कर सकें। The observation that a cucumber placed in concentrated brine shrivels into pickle can be supported by the process of osmosis. The observation that a cucumber placed in concentrated brine shrivels into a pickle can be supported by the process of osmosis. ये जो कुकम्बर है जब हम इसको कंसनट्रेटेड ब्राइन के ऊपर प्लेस करते हैं, पिकल में श्रिवल हो जाता है, उसके लिए सपोर्ट करने के लिए जो फिनोमेना है वो क्या है, ऑस्मोसिस। When a cucumber is immersed in concentrated brine which is solution of high salt concentration, osmosis occur. जब हम cucumber को immerse कर देते हैं in a solution of concentrated brine जिसके अंदर जो salts की हायर concentration present है तो उसमें क्या होता है, osmosis का process occur होता है। अब osmosis क्या है, जो movement of solvent molecule through a semi permeable membrane from an area of lower solute concentration to an area of higher solute concentration. osmosis में क्या होता है, जो हमारे solute के molecules हैं वो जहाँ पे कम होते हैं वहां से सॉल्वेंट मूव करता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स जहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। The cucumber being a plant tissue has cells that contain water. अब cucumber क्या है जी, being a plant tissue उसके अंदर क्या है, वाटर
प्रेजेंट होता है। These cells have a high water concentration compared to the concentrated brine solution. अब ब्राइन सॉल्यूशन की निस्बत जो कुकम्बर है उसके सेल्स में हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है और द ब्राइन सॉल्यूशन एक्ट एज अ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन एरिया while the cucumber cell act as a lower solute concentration area. अब जो ब्राइन का सोल्यूशन है वो एक्ट कर रहा है एज हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन हो गया क्योंकि वहाँ पे क्या है जी वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम है और जो कुकम्बर सेल्स है वो एक्ट कर रहे हैं एज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बिकॉज वाटर की कंसंट्रेशन क्या है कुकम्बर के सेल्स में ज़्यादा है. As a result of osmosis, water from cucumber cells moves through the cell membrane and into the surrounding brine solution. अब जो वाटर है वो क्या करेगा कुकम्बर सेल से निकलेगा क्योंकि वहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और वो पास करेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और वो ब्राइन सॉल्यूशन में आ जाएगा where the salt concentration is higher. This lead to the loss of water from the cucumber cell. As a result, the cucumber cells lose water, they become dehydrated and shrink. और जैसे जैसे cucumber जो water को lose करता जाएगा तो वो dehydrate हो जाएगा और जब dehydrate होगा तो क्या होगा shrink होगा resulting in the shriveling of cucumber जिसकी वजह से जो cucumber में shriveling का process होगा. Additionally, the salt in brine solution serve as a preservative and contributes to the flavor of the pickle. और जो सॉल्ट प्रेजेंट है ब्राइन सॉल्यूशन वो क्या करता है सर्व करता है एज अ प्रिजर्वेटिव और वो कंट्रीब्यूट करता है पिकल के फ्लेवर में. इट हेल्प्स टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज स्पॉइलेज एंड फर्मेंटेशन प्रिजर्विंग द कुकम्बर फॉर अ लॉन्गर पीरियड. और वो इनहिबिट करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जो कि स्पॉइलेज और फर्मेंटेशन करते हैं और वो कुकम्बर को प्रिजर्व करते हैं कि वो ज़्यादा देर तक सही रह सके. Overall, the high salt concentration in the brine solution draws out water from cucumber cell through osmosis. जो high concentration brine solution की वो draw करते हैं water from the cucumber cells through the process of osmosis, leading to the dehydration and shriveling of the cucumber, transforming it into a pickle. जैसे जैसे वाटर की कंसंट्रेशन इन कुकम्बर कम होगी तो वो क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा श्रिवल करेगा ड्यू टू द डिहाइड्रेशन और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू पिकल. Now question number 33 है जी. Two beakers are placed in sealed bell jar. One beaker contains water and the other contained concentrated glucose solution. अब जो दो बीकर्स हैं उनको हमने सील्ड बेल जार में प्लेस कर दिया है. एक के अंदर जो वाटर है और अदर के अंदर क्या है concentrated glucose solution है. With time the volume of water decreases and solution of volume increases suggest reason. जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कम हो जाता है और सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन क्या करता है इंक्रीज कर जाता है. उसकी रीजन क्या है? The reason for the decrease in water volume and the increase in solution volume in the beaker placed in the sealed bell jar is due to the osmosis. ये किस वजह से? Due to the process of osmosis. Process of osmosis क्या होता है कि जो हमारा solvent है वो जहाँ पे हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वहाँ से जहाँ पे हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन हायर है उस तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. Osmosis is the movement of solvent molecule through a semi-permeable membrane from an area of lower solute concentration to an area of higher solute concentration. A semi-permeable membrane allows the passage of solvent molecule but restrict the passage of solute particles. जो semi-permeable membrane है वो solvent को तो allow करता है कि वो pass कर सके but solute के particles को restrict करता है. As a result of osmosis, water from beaker with water moves through the membrane into the beaker with concentrated glucose solution. अब glucose solution में क्या है जो हमारे पास solute के particles हैं वो ज़्यादा हैं तो water क्या करेगा water जो है वो water वाले jar से निकलेगा और towards the ग्लूकोज सोल्यूशन जाएगा जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जिसकी वजह से जो वाटर का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और ग्लूकोज सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा.
दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच, और ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और ग्लूकोज equalized नहीं हो जाती on both sides of membrane. The final state will depend on the initial concentration of water and glucose and the properties of the semi-permeable membrane. जो final state है वो depend करती है कि हमारे पास initial concentration water और glucose की क्या है, और हमारे पास जो semi-permeable membrane present है उसकी properties क्या. It's important to note that the direction of osmosis depends on the relative concentration of solute on either sides of the membrane. In this case, the movement of water is from an area of lower concentration to an area of higher solute concentration. Now question number 34 has we consider two aqueous solution, one is sucrose and the other is glucose. Both of these solution boils at 101.52 degrees Celsius. List some common properties of this solution. ये जो दोनों solution है sucrose और glucose का, ये at the same temperature boil हो जाते हैं. अब हमने जो common properties इन दोनों solution की वो list down करनी है. Boiling point elevation. Both solutions have an elevated boiling point compared to pure water. This is colligative property which depends on the concentration of solute particles in the solution. अब जो colligative properties है वो number of solute particles के ऊपर depend करती है, क्योंकि जो sucrose और glucose है उनमें जो number of solute particles हैं वो क्या है, constant है, इसकी वजह से जो उनका boiling point है वो भी same है. Osmotic pressure. Sucrose and glucose solution exhibit osmotic pressure, which is the pressure required to prevent the flow of solvent molecules through a semi-permeable membrane. Osmotic pressure क्या करता है कि वो prevent करता है कि हमारा जो है वो solvent के molecules semi-permeable membrane को cross कर सके. अब जो osmotic pressure है वो भी depend करता है कि हमारे पास solute की concentration कितनी है. नेक्स्ट है जी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है जी, हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से जो ये दोनों सॉल्यूशन है सक्रोज और ग्लूकोज, उनमें जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो भी सेम है. नाउ क्वेश्चन नंबर 35 है जी डिजाइन ऑन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन अ कंपाउंड. हम एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना है जिसकी हेल्प से हम डिटरमिन कर सकें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन अ कंपाउंड. जो हमारे पास मटेरियल्स चाहिए वो क्या है, वेटेड कंपाउंड, क्रूशिबल एंड कवर, बंसन बर्नर हीटिंग सोर्स, ट्राइपॉड स्टैंड एंड वाई गॉज, टोंग्स, बैलेंस और स्केल, डेसिकेटर ये ऑप्शनल है. अब जो प्रोसीजर है वो क्या है जी, सबसे पहले हमने क्रूशिबल को प्रिपेयर करना है. क्लीन एंड ड्राई द क्रूशिबल एंड कवर. जो क्रूशिबल है हमने उसको साफ करना है, ड्राई करना है, उसको फिर कवर कर देना है. विद द एम्प्टी क्रूशिबल एंड रिकॉर्डेड मैस. फिर हमने उसको मैस बैलेंस के ऊपर रखना है, उसके वेट को रिकॉर्ड करना है. फिर हमने क्या करना है जी, एडिंग द हाइड्रेट. Add a known mass of hydrated compound e.g. copper sulfate pentahydrate to the crucible. फिर हमने known weight of hydrated compound add करना है to the crucible, और फिर हमने जो है उसको दोबारा weighing balance के ऊपर रख के तो उसका mass रिकॉर्ड करना है after adding hydrated compound. The next one is heating the crucible. Place the crucible on a tripod stand with a wire gauze. फिर हमने उसको tripod stand के ऊपर रखना है with a wire gauze, और फिर हमने क्या करना है उसके नीचे बंसन बर्नर की हेल्प से फ्लेम को एडजस्ट करना है. हीट द क्रूशिबल gently and uniformly using burner flame. Initially heat the crucible with cover slightly ajar to allow moisture to escape. फिर हमने क्या करना है उसको आहिस्ता आहिस्ता से हीट देनी है, और हमने उसमें जो थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है ताकि जो मॉइस्चर है वो एस्केप कर सके. फिर हमने क्या करना है ग्रेजुअली उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, और हमने यह ख्याल रखना है कि सॉल्यूशन जो है वो बॉयल ना हो. Continue heating until the compound changes color or stops losing mass.
हमने तब तक हीट करना है जब तक कंपाउंड का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता और जो उसके मैस में कोई चेंजिंग आना स्टॉप नहीं हो जाती। इट शुड टर्न फ्रॉम हाइड्रेटेड फॉर्म टू एन एनहाइड्रस फॉर्म। और जब कलर चेंज होगा तो क्या होगा, वो हाइड्रेटेड फॉर्म से एनहाइड्रस फॉर्म की तरफ जाएगा। कूलिंग एंड मेजरिंग। जब हमारे पास कलर चेंज हो गया, मैस चेंज होना बंद हो गया, फिर हमने क्या करना है, हीट को बंद करना है और हमने उस क्रूसिबल को छोड़ देना है कि वो कूल डाउन हो जाए। Once the crucible has reached room temperature, weigh it with the anhydrous compound inside. जब क्रूसिबल का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में आ जाए, फिर हमने क्या करना है, उसको वे करना है एज एन एनहाइड्रस कंपाउंड इनसाइड और फिर उसके मैस को रिकॉर्ड कर लेना है। कैलकुलेटिंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Calculate the difference in mass between crucible with hydrate and the crucible with anhydrous compound. अब जो हमने हीटिंग से पहले मैस लिया था उसको और जो हमने हीटिंग के बाद जब वो कूल डाउन हो गया वो मैस, उनके डिफरेंस को हमने कैलकुलेट करना है और ये जो डिफरेंस आएगा ये कोरस्पॉन्ड करेगा कि हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना लॉस्ट हुआ है ड्यूरिंग हीटिंग। फिर जो परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन है उसको फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करना है। उसका फार्मूला क्या है जी, मास ऑफ वाटर लॉस डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रेट मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ दैट्स ऑल अबाउट of exercise number 10 chemistry, and thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which we will upload in future. Inshallah, in our next video we will discuss chemistry class 11 chapter number 11 exercise questions. Till that time, if you have any query related to any video of chemistry class 11, please put a comment in the comment section box. Till next video, take care. Allah Hafiz.